شادی کا کچن مہکے جہاں، گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں۔ جہاں جائے رشتہ بنائے گولڈی مسالے۔ آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بھارت میں ایک ملک ایک چناؤ کے لیے امکانات تلاش کرنے کی خاطر سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ سورج کے مطالعے کے لیے بھارت کے مشن آدتیہ کی الٹی گنتی شروع۔ سیارچہ کل دوپہر کو چھوڑا جائے گا خلا میں۔ جموں کشمیر میں صحت کی اسکیموں کے بارے میں جانکاری پیدا کرنے کی خاطر آیوشمان بھاو مہم کا آغاز۔ اور ڈیجیٹل ویک کے سلسلے میں آج دوسرے روز بھی مختلف اضلاع میں سرگرمیاں جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے ایک ملک ایک انتخاب کے امکان کا پتہ لگانے کے لیے سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس فیصلے پر میڈیا کا سوال کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ایک رپورٹ تیار کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس رپورٹ پر عوامی سطح پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے خاص طور پر کہا کہ 1967 میں لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے لیے انتخاب ایک ساتھ کرائے گئے تھے۔ بھارت کے مشن آدتیہ کو کل سورج کی طرف خلا میں روانہ کرنے کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ PSLV-C-57 کل دوپہر آندھرا پردیش سے سری ہری کوٹا کے خلائی اسٹیشن سے مشن کو شروع کرے گا۔ سورج کے مطالعے کے لیے خلا میں بھارت کے اس مشاہداتی سیارچے کو کل دوپہر 11:50 پر چھوڑا جائے گا۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے بتایا کہ اس سیارچے کو شمسی اور ارضیاتی نظام کے پوائنٹ L1 کے قریب مدار میں پہنچایا جائے گا، جو کرۂ ارض سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4 مہینے کا وقت لگے گا۔ اسرو نے لوگوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ ویب سائٹ پر اپنا اندراج کرا کر سری ہری کوٹا میں مشاہدہ کرنے سے متعلق گیلری سے PSLV-C-57 کو چھوڑے جانے کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا ایک خصوصی اجلاس اس ماہ کی 18 سے 22 تاریخ کو طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کی 5 نشستیں ہوں گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے ایک میڈیا پوسٹ کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امرت کال کے پیش نظر حکومت پارلیمنٹ میں سودمند اور خوشگوار ماحول میں بحث مباحثے اور بات چیت کی منتظر ہے۔ جموں کشمیر بھر میں آج سے آیوشمان بھوا مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے تحت سبھی اضلاع کے اسکولوں، کالجوں، ہیلتھ مراکز اور آنگن واڑی سینٹروں میں صحت کے سیکٹر کی ان تمام اسکیموں کے فوائد کے بارے میں جانکاری عام کرنا ہے جو مستحقین کے لیے UT سرکار اور مرکزی سرکار کی معاونت سے چلائی جا رہی ہیں۔ ادھر ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ سعید سہرش اصغر نے آج دلینا میں آیوشمان بھوا مہم کا آغاز کیا۔ ضلع کے باقی سبھی سب ڈویژنوں میں بھی اس مہم کی شروعات کی گئی۔ اس موقع پر کئی سارے مستحقین میں گولڈن کارڈ اور آبا کارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ راجیہ سبھا ممبر انجینئر غلام علی کھٹانہ نے آج ضلع اسپتال پلوامہ کا دورہ کر کے وہاں مریضوں اور تیمارداروں کے علاوہ اسپتال عملے کے ساتھ بات چیت کی۔ CMO پلوامہ اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے ہمراہ انہوں نے اسپتال میں مریضوں کے لیے دستیابی کا جائزہ لیا۔ علی کھٹانہ نے اسپتال کے مختلف سیکشنوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہیں جانکاری دی گئی کہ اسپتال کے ڈائلیسس یونٹ میں ہر روز 3 مریضوں کی ڈائلیسس کی جاتی ہے۔ انہوں نے حاملہ خواتین کو مختلف سرکاری اسکیموں کے تحت دی جانے والی مراعات کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت آج نئی دلی سے امرت کلش یاترا کا آغاز کیا۔ اس مہم کا اعلان 9 اگست کو ملک کے شہید بہادر مردوں اور خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ملک بھر میں امرت کلش یاترا کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے تحت دلی میں امرت واٹکا تعمیر کرنے کے لیے 7500 کلشوں میں ملک کے کونے کونے سے مٹی لائی جائے گی۔ امرت واٹکا قومی جنگی یادگار کے قریب تعمیر کی جائے گی اور یہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے عہد کی عکاسی کرے گی۔ اکتوبر کے اختتام پر ہزاروں لوگ امرت کلش یاترا کے ساتھ قومی راجدھانی دلی پہنچیں گے۔
सामान की खरीदारी की रसीद इनवॉइस से मुतल्लिक तरगीबाती स्कीम मेरा बिल मेरा अधिकार का आगाज हो गया है। इस स्कीम का मकसद आम लोगों में कल्चर और रवैये के एतबार से तब्दीली लाना है ताकि वो अपने हक के तौर पर बिल का मुतालबा करें। स्कीम के तहत सार्फिन को 1 करोड़ रुपए की पुरकशिश इनामात दिए जाएंगे। लकी ड्रॉ के लिए इन इनवॉइसेज की कम से कम कद्र 200 रुपए रखी गई है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि ये रसीद को मोबाइल एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार और वेब पोर्टल मेरा बिल .gst.gov.in पर अपलोड किया जा सकता है। भारत के तमाम बाशिंदे इस स्कीम में हिस्सा लेने के अहल होंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी रियासत या मरकज के जेर इंतजाम इलाके से हो। एक फर्द के जरिए एक माह में ज्यादा से ज्यादा 25 रसीदें अपलोड की जा सकती हैं। स्कीम में हुकूमत हर माह 800 लोगों का इंतखाब करेगी, जिन्हें 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बम्पर ड्रॉ में 2 अफराद को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये ड्रॉ हर 3 माह में निकाला जाएगा। आजमाइश के तौर पर शुरू की जाने वाली ये स्कीम 12 माह तक जारी रहेगी। डिजिटल वीक के सिलसिले में आज दूसरे रोज भी जम्मू कश्मीर के तकरीबन सभी अजला में अलग अलग नौइयत की सरगर्मियां जारी रहीं। मुख्तलिफ जिला इंतजामिया की जानिब से अलग अलग इलाकों में जानकारी प्रोग्राम और वर्कशॉपों का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया बांडीपुरा की जानिब से आज ई ऑफिस के बारे में एक तरबियती वर्कशॉप मुनअक्किद किया गया, जिसका मकसद जिले में डिजिटल गवर्नेंस की सरगर्मियों को फरोग देना है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद की क़यादत में मुनअक्किदा इस वर्कशॉप में जिले के मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता अफसरों और एहलकारों ने हिस्सा लिया। उधर सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कोकरनाग की जानिब से भी आज डिजिटल हफ्ते के दूसरे रोज एक जानकारी प्रोग्राम मुनअक्किद किया गया। प्रोग्राम के दौरान लोगों में ऑनलाइन खदमात के बारे में बेदारी पैदा की गई ताकि उन्हें डिजिटल एतबार से ज्यादा बाइख्तियार बनाया जा सके। इस मौके पर SDM कोकरनाग ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना करके उनसे उनकी खदमात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को डिजिटल इनकलाब का हिस्सा बनने की सलाह दी। पामपुर इलाके में मादनियात की गैर कानूनी अखराज का संजीदा नोटिस लेते हुए जिला मिनरल अफसर जियोलॉजी एंड माइनिंग पुलवामा और तहसीलदार पामपुर की सरबराही में एक टीम ने मंडकपाल और लदू गांवों में छापे डालकर 6 JCBs, 2 LNTs और 3 टिपरों समेत 11 गाड़ियों को तहवील में ले लिया है, जो मादनियाती मवाद को गैर कानूनी तौर पर ट्रांसपोर्ट करने में मुलविस थीं। जब्त की गई गाड़ियों को मजीद कार्रवाई के लिए महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग के सुपर्द किया गया। मालूम हुआ है कि ये गाड़ियां और मशीनें रात के दौरान गैर कानूनी काम अंजाम दे रही थीं। तहसीलदार ने बताया कि इलाके में मादनियात की कानकनी सिर्फ और सिर्फ कानून के तहत ही की जा सकती है। चाडोरा के वटकुलू गांवों के बाशिंदों ने आज महकमे जल शक्ति के खिलाफ ये कहकर एहतजाज किया कि उनकी बस्ती पिछले 2 माह से पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों का कहना है कि साफ पानी की अदम मौजूदगी के नतीजे में उन्हें नदी नालों का गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में बीमारियों का खतरा उनके सरों पर मंडलाता रहता है। पतम जरियत आब पेवान कल पे मुकुर आब गई बेमार मे छत खराब खराब आब सत बच्चे गई बेमार अमे मुकुर आब आब सोन इंसाफ कहन कर इंसाफ आब। दूरदर्शन न्यूज ने लोगों की ये शिकायत एक्जन PHE चाडोरा नाजिया नजीर की नोटिस में लाई तो उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले 2 दिन में इस मसले को हल किया जाएगा। जो एक लाइन थी वो PMGSY के रोड अलाइनमेंट में आ रही थी, वहां हमें थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। वी आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। हमने ऑलरेडी ये कन्वे कर दिया अपने AEE साहब को। इट विल बी लुक्ड ये हम बहुत शॉर्टली देख लेंगे कि इसमें क्या इशू। महकमे दी तरक्की के सेक्रेटरी तारिक अहमद जरगर ने कुपवारा का दौरा करके जिले में अमलाए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमों पर अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। अफसरों और इंजीनियरों की एक मीटिंग में उन्होंने खास तौर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और ODF जैसे प्रोग्रामों की पेशरफ्त का बगौर जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो जिले में महकमे के तहत जेर अमल सभी कामों को वक्त रहते मुकम्मल करें। सेक्रेटरी मौसूफ ने हेरी कादिर आबाद और सुगाम ब्लाकों का भी दौरा किया।
नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने ज़ाफ़रान के लिए मशहूर पामपुर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों वुयन, मुनपुरा और अंदरोसा का दौरा करके वहां ज़ाफ़रान उगाने वाले काश्तकारों से रास्त बातचीत करके महकमे की तरफ से किए जा रहे इक़दाम का जायजा लिया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि महकमे ज़राअत ज़ाफ़रान के सेक्टर को फ़रोग़ देने के तई अहदबंद है, जिसके लिए पहले ही बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं और आगे भी कई सारे इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़ाफ़रान उगाने वालों की इक़्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए GI टैग वाले ज़ाफ़रान को कौमी और बैनुल अक़वामी बाज़ारों तक पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के मालिखेल इलाके में एक खुदकुश बम धमाके में 9 फौजी जाँ बहक और 20 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस ज़राए ने कहा कि यह हमला उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल पर सवार एक खुदकुश बमबार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज परेपुरा हाजिन में एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अवाम के मुश्किलात में आए रोज इजाफा होता जा रहा है और बकौल उनके हुकूमती सतह पर जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता है। कन्वेंशन से खिताब करने वाले दीगर लीडरों ने रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के संगीन नताइज के बारे में खदशात का इजहार किया। इस मौके पर बताया गया कि वादी में महंगाई इस कदर उरूज पर है कि आम लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। लीडरान ने मंशियात की बिद्दत के बारे में भी अपनी तशवीश जाहिर की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज श्रीनगर के शानपुरा हबक में एक अवामी मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी से वाबस्ता कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मीटिंग से खिताब करते हुए पार्टी सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगले चुनाव में इख्तिदार में आने की सूरत में उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के सभी खित्तों की मसावी तरक्की यकीनी बनाने के अलावा लोगों को सियासी और इख्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए काम करेगी। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने यह कहते हुए कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, हुकूमत हिंद से कहा कि जम्मू कश्मीर में बिना किसी ताखीर के असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया जाए। एक बयान में उन्होंने कहा कि चूंकि मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में यह वाजिया किया है कि जम्मू कश्मीर में हालात काफी हद तक साजगार हो चुके हैं, अब यहां चुनाव कराने में मजीद कोई ताखीर नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मरकज को जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का अपना वादा भी निभाना चाहिए। दूरदर्शन के शोबे खबर में हमारी साथी बसीरत ज़ुहूर की बहन की इज्तिमाई फातह ख़्वानी कल यानी 2 सितंबर को उनके आबाई मकबरे वाक़ा गुलाब बाग में अंजाम दी जाएगी। उनका इंतकाल एक सड़क हादसे में 30 अगस्त को हुआ था। जचलडारा में कायम फौजी कैंप ने आज कंपनी कमांडर के साथ गुलजाना में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इसमें 70 स्कूली बच्चों और 5 असातिज़ा ने बढ़ चढ़कर शिरकत की, जिन्होंने म्यूजिकल चेयर, स्पून लेमन और टग ऑफ वॉर जैसी सरगर्मियों में पुरजोश अंदाज से हिस्सा लिया। इस मौके पर उनकी हौसला अफजाई के लिए बच्चों को कुछ तहाइफ पेश किए गए ताकि उनकी कुव्वत को सही सिमत में इस्तेमाल किया जा सके। इस मौके पर साथ ही AOR के साथ सरपंचों के साथ भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिस दौरान आने वाले पंचायती चुनाव के मौजू पर एक मुबाहिसा हुआ। महकमे खेल कूद के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज ने आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मर्दों के सीनियर जुमरे में 52वीं नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट में 32 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिन्हें 8 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। टूर्नामेंट का फाइनल 5 सितंबर को खेला जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर